کے لیے, آوازوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری قوائد کے ساتھ ہو, اور پرستش کا مسا مانگتے ہیں. جو بہن بھائی آنا چاہتے ہیں ان کی دعا کرتے ہیں, جو راستے میں ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سب کو اپنے قدموں میں جلد لے کے آئے. ہاللیلویا, پریز جیسس, ہاللیلویا. ہم چند لمحے خاموشی میں دعا میں گزاریں اپنے لیے. خدا تو مجھے آج کی عبادت کے لیے تیار ہے, آج کے کلام کے لیے تیار ہے. بات اتنا شور شرابہ اور اس کی دعا کریں کہ خداوند جلدی سب کو فارغ کرے, تاکہ عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. میں چاہتا ہوں, جب میں نے دعا کے لیے کہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آواز پہ کام کرتا ہے. ہم کچھ وقت دعا میں بجانا چاہتے ہیں. آپ کی بلیسنگ آپ کی دعا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے. دس یور ٹائم. اگرچہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے, دعا کر رہے ہوں گے اپنے دل میں. خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے. آج کے پیغام کے لیے ہم دعا کریں. خدا کی خاتمہ بینا شفقت کے لیے خدا مجھے کثرت استعمال کرے. دل کو انڈیل دیں تاکہ خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں آئے اور آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. خداوند ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرے. خدا کے پاک پر رہی, ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں آج شام کے لیے. جتنے ہمارے بہن بھائی آ گئے ہیں ان کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو اپنی مصروفیت کے باعث وقت پر نہیں پہنچ پائے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو بھی وقت پر لے کر آ. اے خداوند خدا, ہم آج کے میسج کے لیے دعا کرتے ہیں, آج کے سازوں اور آوازوں کے لیے دعا کرتے ہیں, پرستش کا مسا مانگتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا, جب گانے والے اور بجانے والے مل جاتے ہاللیلویا تو تیرا مسا وہاں پر ٹھہر جاتا. ہاللیلویا. اور تو آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے. تھینک یو لارڈ جیسس. ہاللیلویا. آج خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری تمجید ہو. آج کی ساری عبادت کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ساری فضا کو پاک کر, ماحول کو پاک کر,
کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے. ہم اپنی انتظامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں, تمہاری انتظامیہ کے ساتھ ہو. اور ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں جنہوں نے آنے کا ارادہ کیا ہے اور گھروں سے نکل چکے ہیں, ٹرانسپورٹ پرابلم اگر ان کے راستے میں ہے تو وہ جاتی رہے, سارے بیریئر جاتے رہے. آج کی عبادت کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارا ہادی اور رہبر اور رہنما ہو. یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین آمین. میں خدا کا خادم آپ سب کو آج کی عبادت میں ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا آج ہم سب کو ڈھیر و برکات دے. اور پرستش کا سارا پروگرام جو ہے میں موبائل کے حوالے کرتا ہوں تاکہ جیسے پروگرام دیا گیا ہے وہ پرستش کو لیڈ کرے گی. خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. پرستش کا آغاز زبور نمبر 46 سے کریں گے. رب سادہ زور ہے پہ نالے ساڑی ہے بنا. Let me
गीत नंबर 18 गाएंगे खुदावन के नाम को जलाल देते हुए। हिम 18 तेरी कुदरत आसमानी।
परस्तिश को ऐसे ही जारी रखते हुए अगला गीत गाएंगे, गीत नंबर 24, तेरा फजल मेरे लिए काफी है।
साथ मिलकर आपके पास माइक है, आप दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। सब सर झुक जाएं। आए हम सब दुआ करें और सच्चे दिल से खुदा की तरफ रुजू लाएं, क्योंकि उसका मकसद हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा है, जो हमारी सोचों से बाहर होता है। कुदूस कुदूस कुदूस, जिंदा सच्चे जलाली आसमानी रबी शफीक बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद, इन सुनहरे पलों के लिए खुदावंद जो तूने आज हमारी जिंदगियों में बख्शा है खुदावंद, क्योंकि बतेरे ऐसे खुदावंद जो तुझसे ना आशना है खुदावंद, लेकिन तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदावंद कि तूने हमें अपने घर में बुलाया है खुदावंद, और आज तू हमें बहुत बरकत देने वाला है खुदावंद। ये मेरा कामिल ईमान है खुदावंद कि आज कुछ खास तूने हमारे लिए रखा है खुदावंद, और इसीलिए खुदावंद तूने हमारे कर्मों को इस राह पर डाला खुदावंद, जो तेरे घर तक लेकर आए हमको खुदावंद। शायद जब हमने दिन का आगाज किया हमें अंदाजा नहीं था कि शाम हमारी यहाँ होगी खुदावंद, लेकिन ये तेरा बहुत बड़ा प्लान है खुदावंद कि तू हमें अपने घर में लेकर आया खुदावंद, और इस खूबसूरत परस्तिश में हिस्सा लेने का तूने मौका दिया खुदावंद। गो खुदावंद हम निकम्मे हैं, कमज़ोर हैं खुदावंद, लेकिन ये तेरा फजल है खुदावंद जो हम जैसे निकम्मों को भी खुदावंद अपने नरसिंगा के तौर पर इस्तेमाल करता है खुदावंद, हमारी आवाज़ों को तू खुदावंद इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए खुदावंद। और मैं बड़े ईमान से मानती हूँ और बिलीव करती हूँ खुदावंद आज की परस्तिश तेरों के लिए बरकत का बाइस बने खुदावंद। बाकी माना जो इबादत का हिस्सा है खुदावंद उसको भी तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद, और हर एक को यीशु नासरी के पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद मेरा ईमान है कि इस लहू के वसीला से हमने निजात पाई है खुदावंद, और आज बतेरे निजात पाएंगे यीशु के नाम से। और आज का कलाम हम सब की जिंदगी के लिए बड़ी भारी बरकत का बाइस बनने वाला है खुदावंद। मैं तमाम खादमीन को जो सुनिया तेरी खिदमत में मसरूफ है खुदावंद तेरे हुजूर में लेकर आती तेरे पाक मस्सा को मांगती हूँ हर एक के लिए यीशु के नाम से। और ऐ खुदावंद आज की तेरी बेटी जो भी कलाम पेश करने वाली है खुदावंद उसके लिए मैं खास तौर से दुआ करती हूँ खुदावंद कि वो खुद कुछ ना बोले बल्कि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तू बोले यीशु के नाम से। और आज जो भी रोटी हम खाने को है खुदावंद वो हमारी रूहों के लिए खुदावंद शिफा और बरकत का बाइस बने यीशु के नाम से। खुदावंद पूरे माहौल को खुदावंद तेरे हाथ में दे देती हूँ खुदावंद, तेरे कब्जा कंट्रोल में देती हूँ खुदावंद, ईमान लाती हूँ खुदावंद कि मैंने जो कुछ भी अभी मांगा है वो पा लिया है यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम से, आमीन। हमारे पास एक गवाही है, हम गवाही सुनेंगे। बहन लूसी से वो आए, जब तक वो आगे आ रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इस ग्रुप का बाकायदगी के साथ हिस्सा बनना चाहते हैं ज़रूर मेंबरशिप कार्ड लें, और मंथली जो भी आपके दिल में शुक्रगुजारी है कि आप खुदा की खिदमत के लिए आगे खुदा के हजूर पेश करना चाहते हैं ताकि इस ग्रुप को अब लिफ्ट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप इस ग्रुप की बाकायदगी के साथ मेंबरशिप लें और हमारे साथ हम मिलकर इस खिदमत को आगे बढ़ाएं। सिस्टर लूसी अपनी टेस्टमनी पेश करने को आई हैं। आप सबको सलाम। I thank and praise God. Just sometimes a week ago, I was coming from school and suddenly a minibus came and was supposed to bang our rickshaw. But I thank and praise God that God's hand was really on us, me and my niece and my nephew. God has protected us, otherwise we would have gone for sick, sir. I thank and praise God because His love and His protection is always there. And also thank and praise God, my sister was going in the lift. Suddenly she got stuck in the lift, and for some time ago, but she thought that she was going to be stuck for a longer time, but God made a way for her to open the lift. I thank and praise God because every impossible become possible with the Lord. I thank and praise God. All those who have come here, that they may never go empty-handed, they may receive abundant blessings and graces from the Lord. Or Mr. Javed Gill, Pastor Javed Gill and all his group members, his family, good Lord will bless him abundantly with abundant blessings and graces from the Lord. I thank and praise God for each and everything. Praise God. Thank you, Jesus.
जोरदार तालियां खुदा के याद के लिए। हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद करते हैं और आपकी तालियों में खुदा की खात्मा सिस्टर समीना शफकत को दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुदा का जिंदा पाक कलाम आज हमारे साथ बांटे। और आप सब ने उनको पहले सुना हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लेंगे। और हम मेरी ये कोशिश होती है कि ये प्लेटफार्म आपने देखा कि अक्सर लोग ख़ातम जगह नहीं देते और किसी और पासबान को अपने प्लेटफार्म से मौका नहीं देते, लेकिन ये कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप का प्लेटफार्म आप सबका है। जो टैलेंट आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो खुदा की खात्मा इस वक्त हमारे साथ खुदा का जिंदा कलाम बांटने को जा रही हैं। थैंक यू। नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का इत्मीनान आप सबके साथ रहे। यहाँ मेरे लिए आना ये नई बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रही हूँ। जो नए चेहरे हैं उनके लिए मैं नई भी हूँ, मगर मेरे लिए यहाँ आना मेरे घर ही की बात है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी तरक्की के लिए मरकज़ की इंजील में से पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील और उसका 8वां बाब। 8वें बाब की आयत नंबर 22 से आप सबके लिए पढ़ने को हूँ। 26 तक हम इसको पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 22 आयत में इस तौर से लिखा है। 22 से 26 तक इसको मैं पढ़ूंगी। फिर वो बैत सदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर उसका फजल हो। आइए एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम बड़े ईमान के साथ तेरी शुक्रगुजारी करती हैं। तू जो नहायत ही मेहरबान है, तू जो है खुदा हमारी ज़िंदगी का मंबा और महवर है। हम तेरे कलाम के लिए, जिसको तूने सब नामों से ज़्यादा मोतबर दर्जा दिया है, इसके लिए हम तेरी तमजीद करते और तेरी तारीफ़ करते हैं। और खुदा आज तूने मुझे इस लायक जान कर के मैं तेरे कलाम की मनाती का, खुशखबरी का सही बयान कर सकूं। इस वक्त खुदावंद तेरे पाक मस्बा पर खड़ी हूँ। सर के बालों से पैरों के तलवे तक मुझे छूने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। रूह को सारा ऑनर तुझे देती हूँ। आने वाली हर एक जान कसरत के साथ शेर को बरकत पाए और सारी कुव्वतें जो यीशु नाम में है खुदा इनकी ज़िंदगी में है खुदा वो जो जिस्मानी है वो ख़त्म हो जाए और रूहानी बरकत से ममूर हो जाए। यीशु नाम में पाते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज हमने एक खूबसूरत वाक़या जो है वो मरकज़ की इंजील और उसके 8वें बाब और उसकी 22 से 26 आयत में देखा है, जहाँ पर हमें एक अंधे के बारे में पता चलता है। यीशु जो है वो अपने शागिर्दों के साथ जो है ये एक गांव में जो कि बैत सदा का गांव है और गलील से शमाल की तरफ है और वहाँ पर यीशु आया है। कुछ लोग जो है कलाम मुक़द्दस में चंद बातें हैं। पहली बात ये है कि कुछ लोग एक अंधे को लाए हैं, ये बात।
तीसरी बात इसमें हमें ये नजर आती है कि ये अंधा है। तीसरी बात इसमें हमें ये नजर आती है कि इसे यीशु ने क्या किया है, हाथ रख कर छुआ है और इसकी आंखों में थूका है। और इसमें चौथी बात हमें नजर आती है कि उसको धुंधला नजर आता है, यानी आदमी जो है वो दरख्तों की तरह दिखाई दे रही है। पांचवी और खास बात इसमें ये है कि जब यीशु ने दोबारा उस पर हाथ रखे हैं और वो साफ साफ देखने लगा है। और छठी बात यह है कि यीशु ने इसको फिर इस गांव में ना आने के कहकर इसको इसके घर की तरफ क्या कर दिया है, रवाना कर दिया है। ये है टोटल इस कहानी की जो मेन बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहली बात जो है वो ये है अजीज़ों के खुदा का कलाम जो है इसको जानना हर एक बशर के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है ये हमें बनाता है, हमें तामीर करता है, हमारी ज़िंदगी में हमारी ग्रोथ करता है और हम रोज़ ब रोज़ इसमें बढ़ते और तरक्की करते हैं। कलाम में जो पहला हिस्सा है उसमें ये बयान किया गया है कि कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो एक अंधे को यीशु के पास बैत-ए-सदा के इलाका में लाए हैं। और ये जो चंद लोग आए हैं इन्होंने यीशु की आकर क्या की है, मिन्नत की है। तो यीशु की मिन्नत करने का मतलब ये है कि ये यीशु से शख्सी तौर पर वाकफियत रखते हैं, ये यीशु को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी हालत से वाकिफ़ हैं, ये जानते हैं कि ये मौजज़ात करने की कुदरत रखता है और ये खुदा का बेटा है और ये जिंदा खुदा का बेटा है और ये बाप के जौहर में सब आलमों से पहले मौजूद है और इस आलम में माँ के जौहर से पैदा हुआ है। और ये इन बातों से भी वाकिफ़ है कि वो अनदेखे खुदा की कुदरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, इसलिए कि सब चीज़ें इसी के वसीला से पैदा हुई। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें यीशु की पहचान है। अगर वो किसी डॉक्टर को पहचानता जानता ना हो और किसी बीमार को उसके पास एडवाइस के साथ भेज नहीं सकता, एडवाइस नहीं दे सकता कि आप जाएं। यकीनन वो किसी को जानता है तो फिर कहता है कि फलां के पास जा, वो तुझे ठीक कर देगा, तेरी बीमारी का इलाज जो है वो फलां डॉक्टर के पास है। इसी तौर से ये चंद लोग जो हैं ये यीशु को पहचानने और जानने वाले हैं। जानने पहचानने वाले होने के बावजूद इन्होंने यीशु के आगे मिन्नत की है कि उसे क्या करे, छुए। अब चाहिए तो ये था कि जब लोगों ने कह दिया तो यीशु वहीं पर उसको छू देता तो अच्छा था, मगर कलाम बयान करता है 23 आयत में कि यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको शहर से बाहर ले गया। अब यीशु उसको शहर से बाहर ले गया है और वो शख्स जो है वो अंधा है। अंधापन जो है ये एक बीमारी है। पहले एक बात मैं वाज़िया कर दूँ कि पिछले सरमन में भाई ने यहाँ पर कहा कि किसी पास्टर ने ये बात कही कि जो लोग बीमार हैं, मसीही जो हैं, ये बीमार नहीं हो सकते। तो एक बात मैं आपको इस बात से मज़ीद उसमें ऐड कर दूँ कि ये इंसान जो है ये हम कहते हैं कि मट्टी का है, ये इसी एलिमेंट्स, इस जहान के अनासर से यानी 105 अनासर एलिमेंट से बनाया गया है। और अब कहा जाता है कि 108 अनासर हैं जिनसे इंसान जो है ये खल्क किया गया, बनाया गया। तो आपको पता है कि जब कोई मर जाता है तो कहा जाता है ये खाक है, खाक में लौट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है ये इसी आलम के एलिमेंट्स अनासर से बनाई गई है। तो जब इस दुनिया के लिए बनाई गई है तो इस दुनिया पर इस पर दुख भी आ सकता है, इस पर मौसमी असरात का असर भी हो सकता है और इस पर हर किस्म की मुश्किलात भी आ सकती हैं, डिप्रेशन भी आ सकता है, मगर बात सिर्फ इसमें कायम रहने की है। इसलिए मसीहियों का बीमार हो जाना अकॉर्डिंग टू बाइबल ये वाजिब है, क्योंकि रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि मखलूक़ात जो है वो कमाल आरज़ू से खुदा के बेटे के ज़ाहिर होने के इंतज़ार में है और वो दर्द ज़रा में कहराते हैं। जब वो दर्द ज़रा में कहराते हैं तो फिर बदन रखते हुए कहराते हैं, तो बदन पर बीमारी का आना एक आम बात है। दूसरी बात यह है कि ये अंधा है और अंधापन जो है ये एक बीमारी है। और अंधापन होना जो है ये आजकल के मुआशरे में जहाँ अफरा तफरी है, बेचैनी है, लालच है, हसद है, मसूफियत
मसरूफियात है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी और के बारे सोचे। मगर पहली बात कि इन्होंने मिन्नत की, चंद लोगों ने आकर शिफायती लोग हैं, इसका मतलब है कि जो किसी का दर्द रखते हैं वो शिफायती लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये शख्स जो है ये अंधा है और दुनिया में रहते हुए इंसान दुनिया के कामों मुश्किलात में इस वक्त इस कदर धंस चुका है कि वो किसी न किसी बात में रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार है। और अंधेपन का शिकार होने की वजह से उसे पता नहीं कि मैं अंधेपन का शिकार हूँ। कोई लोग किसी हवस में मुब्तला हैं तो वो इस बात का शिकार है, कोई लोग पैसे के बहुत ज़्यादा लालच की हवस में अंधेपन का शिकार है, वगैरह वगैरह। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल यहाँ पर दी जा सकती है। मगर चूँकि अंधापन जो है ये रूहानी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए इंसान की ज़िंदगी में है, और इस बात की तायीद जो है ये कलाम मुक़द्दस में क्रंथस के ख़त में से हमें मिलती है। क्रंथस का ख़त अगर हम खोलें तो यहाँ से हमें एक हवाला जो है वो मिलता है, पहला क्रंथस 4 बाब और उसकी 4 आयत में। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। जहान के खुदा ने अक्लों को क्या कर दिया है जी, अंधा कर दिया है। इसलिए अंधा कर दिया है ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। मगर ये पूरी आयत इस तरह से लिखी है कि इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इसका मतलब है कि अक्ल को अंधा अबलीस ने इसलिए कर दिया है कि यसु क्या है, वो खुदा की सूरत है। यसु क्या है, खुदा की सूरत है। कलाम में मेरे साथ रहिएगा, यसु खुदा की सूरत है। और अबलीस नहीं चाहता कि यसु जो खुदा की सूरत है वो उसके जलाल की, यानी कि खुदा का जो जलाल है उसकी रोशनी यसु मसीह के वसीला से लोगों पर ना पड़े। ये अबलीस का एक मंसूबा है। इसलिए बाज़ दफ़ा लोग कलाम पर इत्तेकाद नहीं रखते, कलाम पर भरोसा नहीं रखते, कलाम से उकताहट महसूस करते हैं, कलाम से थक जाते हैं, कलाम से दिल लगाना पसंद नहीं करते, बल्कि कलाम को अपने लिए बोझ समझते हैं और दूसरी मसरूफियात में जो दुनिया की है उसमें बिजी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बशर्ते के खुदा के कलाम के। और कलाम ने अक्लों ने इसलिए शैतान ने अंधा कर दिया और कलाम उनमें जाने नहीं देता। एक सिंपल सी बात है, जैसे आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर कोई समझता है कि दुनिया मेरे हाथ में है। ये उसकी मर्ज़ी है, उसमें वो क्या यूज़ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसके अपने डिपेंड करता है। मगर इस तरह से भी अबलीस ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है ताकि जो कलाम की रोशनी है वो ज़िंदगी में ना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि अक्ल को अंधा कर दिया गया है। मगर खुदा का कलाम जो खुदा है वो शुरू से चाहता है कि इंसान जो है वो उसकी तरफ वापस लौट जाए, और इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्शा है जिसको उसने ज़िंदगी दी है। और वो ज़िंदगी नूर की ज़िंदगी है जो हमारे अंदर आ जाती है, और वही नूर की ज़िंदगी रखते हुए उसने मुकाशवा की किताब उसके 4 बाब की, अगर आप मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब है जी और उसकी 18 आयत को देखें तो कलाम मुक़द्दस में वहाँ पर लुदीकिया की कलीसिया के मुतालिक है। लुदीकिया की कलीसिया जो है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मालदार समझती है और दौलतमंद समझती है, और ये समझती है कि इसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की इसके पास कमी नहीं है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने रूह की तहरीक से यूहन्ना आरफ के वसीला से उसको लिखवाया कि तू अंधा है। और भी बड़ी बातें लिखवाई हैं, मगर मैंने यहाँ सिर्फ अंधे को कोट किया है कि तू अंधा है, और इसके आगे लिखा है तू नंगा है, और आगे लिखा है तू कमबख्त है, तू खुवार है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें उसमें हैं, मगर वो अपने आप को दौलतमंद समझता है। वो क्या समझता है कि मैं किसी चीज़ का मुहताज नहीं हूँ। ये दुनिया की हालत है, क्योंकि लुदीकिया का मतलब है लोगों की हुकूमत, यानी कि ऐसी कलीसिया जिस पर लोग हुकूमत करते हैं, दुनिया हुकूमत करती है। और कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह उसको मशवरा देता है तू आँखों में लगाने के लिए मुझसे क्या ले ले, सुरमा ले ले, ताकि तू क्या हो जाए, बीना हो जाए। तो इसका मतलब है कि बीना होने के लिए, आँखें लेने के लिए कलाम का सुरमा लेना इंतहाई ज़रूरी है।
ताकि कोई शख्स बीना जो है वो होकर कलाम को जान ले और फिर नाबीना ना रहे। अब यहाँ पर ये शख्स जो है जो मरकज़ की अंजील में है ये भी अंधा है और यीशु इसको लेकर शहर से उस गांव से बाहर चला गया है। और जब यीशु उस गांव से बाहर चला गया है तो फिर यीशु मसीह ने उसको अकेले अपने सामने आमने सामने खड़ा किया है और अपने हाथ उसके ऊपर रखे हैं। पहली बात कि वो अंधा है और हम रूहानी अंधे की बात कर रहे हैं। मैं इसी कहानी को लेकर आपको कुछ और अच्छी वाली रूहानी बातों के मुताबिक ज़्यादा बातें बताना चाहती हूँ। इस अंधे को यीशु मसीह ने अपने सामने खड़ा किया और इसके ऊपर हाथ रख दिए। जब किसी पे यीशु के हाथ आ जाते हैं ना वो मामूली नहीं रहता। वैसे ही किसी पे हाथ रखते इंसान महसूस करता है कि बोझ मेरे पे है या किसी ने मुझे छू लिया है, मगर यीशु के हाथ रखने की वजह से वहाँ गांव से बाहर है और यीशु उसको ले गया और उस पर अपने हाथ रख दिए और उसकी आंखों में क्या किया है, थूका है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम इब्रानियों का हक़ और उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु जो है वो उसके जलाल का परतू बाप थे, वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सारी चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से क्या कर देता है, संभालता है। तो जब वो कुदरत के कलाम से संभालता है तो इसका मतलब है उसके कह देने की ज़रूरत थी, उसको थूकने की ज़रूरत नहीं थी, मगर चूँकि वो अंधा है और यीशु उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसकी वजह से वो जान ले कि कुदरत उसके अंदर काम कर रही है और उसके ईमान को पुख्ता करना चाहते थे और ना सिर्फ उसको जिस्म की शिफा देना चाहते थे बल्कि उसको बातनी तौर पर भी शिफा देना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो बातनी तौर पर भी जो है वो तरक्की कर ले और बढ़ जाए और मसीह में कायम हो जाए। और जब उसने उसको छू लिया और उसकी आंखों में थूका और उसके ऊपर हाथ रखे तो यीशु उसके रूबरू है और वो और यीशु है। गाँव से बाहर जाने का मकसद ये है कि एक सुनसान जगह पर खामोशी में जहाँ दुनिया का शोर उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि देख तो वो सकता नहीं मगर वो सुन सकता है और उसके कानों में जो शोर है वो ना पड़े और वो जान ले कि कुदरत का मालिक उसके सामने खड़ा है और वो उसके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बाज़ दफ़ा लोग बीमार होते हैं और यही चाहते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं या किसी मुश्किल में होते हैं तो पासबानों की ड्यूटी लगा देते हैं, आपने दुआ करनी है, आपने करनी है, आपने करनी है, सब कुछ आप ही करो, मैंने आगे नहीं आना। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़ा है और वो हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले गया है। ये छोटी बात नहीं है, ये मौजज़ा बहुत बड़ी हमें एक लेसन देता है कि जब यीशु किसी का हाथ पकड़ता है तो फिर उसको मुकम्मल शिफा देता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ता, उसके साथ रहना चाहता है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर वो मेरी आवाज़ सुनकर अपना दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, अंदर आऊँगा। वो मेरे साथ छोटी छोटी बातें संडे स्कूल की हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, मगर ज़रूरत है कि दिल का दरवाज़ा यानी बातनी तौर पर खुदावंद के करीब आना। अब यीशु और वो शख्स जो है अंधा वो आमने सामने खड़े हैं, यीशु के कदमों में आने वाले और उसके रूबरू खड़े होने वाले और पोशीदगी में अपनी बातें उसके साथ डिस्कस करने वाले, हमेशा उसके यीशु का हाथ उनके सरों पर रहता है और वो अपनी बरकत उनमें क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। जब यीशु ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने क्या पाया होगा। फ़र्ज़ करें अगर एक औरत जो है जो अपने अंदर ईमान रखती है कि मैं उसका जो है वो पल्लू ही छू लूँगी, उसका कोना ही छू लूँगी तो मैं क्या कर लूँगी, मैं शिफा पा जाऊँगी, मैं अच्छी हो जाऊँगी, मैं बेहतर हो जाऊँगी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये शख्स जो है जिसके ऊपर यीशु ने हाथ रख लिए, ये इसके अंदर कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई इलाही बरकत नहीं ठहरी। मेरा ईमान है कि उसके अंदर यकीनन तब्दीली आई होगी। मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों का खत। यहाँ से हम एक हवाले के थ्रू ये देखते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर मसीह में कायम और मजबूत होते हैं। इफ्सियों का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 17 में लिखा है कि हमारे खुदा में यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है। पहले हमने देखा कि यीशु जो है वो जलाल की खुशखबरी देना चाहता है और इब्लीस ने उनकी अक्लों पर वो अंधा कर दिया है ताकि रोशनी उनके अंदर ना जाए। मगर यहाँ पर लिखा है कि
کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. یہ حکمت اور مکاشفہ کی روح جو ہے یہ انہی کو ملتی ہے جو یسوع کے پاس آ جاتے ہیں, جو اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں, جو دنیا کے شور کو اپنے کانوں سے دور کر دیتے ہیں, جو دل اس کی طرف لگا لیتے ہیں. ان کو وہ اپنی پہچان دیتا ہے جیسے اس کو لے کے آنے والے اس کی پہچان رکھتے تھے. اور آج ہم یہی سیکھ سکتے رہے ہیں کہ مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. لکھا ہے کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. اور آگے لکھا ہے اور تمہارے دل کی آنکھیں کیا ہو جائیں, روشن ہو جائیں, تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلاوے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. اب اندھا تو ایک بڑی دولت پانا چاہتا تھا اور وہ دولت اس کی آنکھیں تھی, کیونکہ اگر وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو جس بندے کے پاس دنیا میں آ کر آنکھیں نہ ہو وہ دنیا کے حسن کو, دنیا کی خوبصورتی کو, خدا کی فطرت کو, خدا کی فطرت کی اس بچھی ہوئی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا. اسے کیا معلوم پہاڑ کیسے ہیں, پھول کیسے ہیں, درخت کیسے ہیں, پھل کیسے ہیں, موسم کیسے ہیں, کیسے دکھتے ہیں, کیسے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اندھے پن کو ختم ہونا ضرور ہے. اسی طرح کلام جو ہے یہ اس کے اندر سے جب ہم اس کو جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر سے جب تک ہمارے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہوتی تو یہ آنکھیں تو رکھتے ہوئے لوگ بڑی برائیاں کر رہے ہیں. یہ آنکھیں رکھتے ہوئے دنیا کو دیکھتے ہوئے پھر بھی دنیا اندھے پن کا شکار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی آنکھوں کا روشن ہونا آج کے کلام کے وسیلہ سے انتہائی ضروری ہے. رسول اعظم پولس ہماری مدد کر رہا ہے کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے, یعنی کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا جگہ رکھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزہ رکھنا, دعا کرنا اور ہدیہ دینا, نذرانے دینا, یہ سب کچھ ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث بنا دے گا. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا جی, حق بخشا. جتنوں نے اسے قبول کیا وہ کیا بن گئے, فرزند بن گئے. تو فرزندیت کس کو ملتی ہے, اولاد کو ملتی ہے. جو اولاد ہوتی ہے وہی فرزند کہلاتی ہے. اور میراث کس کو ملتی ہے, کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو اپنی میراث اپنے پڑوسیوں کو دے کے مر جائے. وہ یہی کہے گا میری میراث, میری دولت, یہ جو ہے میری پراپرٹی جو ہے یہ میری اولاد کو ملے, میرے بیٹوں کو ملے, کیونکہ یہ قوانین ہے پاکستان کے بھی. اور جب ایسا ہے تو خدا کے بھی یہی قانون ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے بس جتنوں نے اسے یعنی مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا, یعنی کہ یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے کیا بن جاتے ہیں, خدا کے کیا بن جاتے ہیں جی, فرزند بن جاتے ہیں. خدا کے کیا بن جاتے ہیں, فرزند بن جاتے ہیں. تو فرزندیت ہمیشہ بیٹے بیٹیوں کی ہوتی ہے, فرزندیت ہمیشہ بیٹوں کو دی جاتی ہے, میراث ہمیشہ انہیں کو ملتی ہے جو بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں. اور جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں, ہر کوئی اپنے باپ کو جانتا ہے اور ہر کوئی اپنے بیٹے کو. دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ہی ہے نا. ایک کہانی ہمارے والد صاحب بچپن میں ہمیں سنایا کرتے تھے. کوئی فقیر تھا تو اسے کسی بادشاہ نے کہا کہ اسے گفٹ دیا بہت خوبصورت اور قیمتی, اور اسے کہا گیا کہ یہ جا کر اس شہر کا جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے دے دینا. وہ سارا دن گھومتا رہا, اسے کوئی بچہ پسند نہیں آیا. شام کو اپنے گھر لے گیا, اسے اپنا ہی بچہ پسند آتا تھا. اور اسی طرح باپ کو جتنے اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں اس کو وہ اپنے فرزند بنا لیتا ہے جو اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں کیا ہے, زندگی ہے, اور وہ زندگی آدمیوں کا کیا ہے جی, نور ہے. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, اندھے پن میں چمکتا ہے. مگر آگے لکھا ہے مگر تاریکی نے, یعنی اس جہان کے خدا نے جو عقلوں کو اندھا کر دیا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آگے لکھا ہے بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنی خدا کے فرزند بننے کا کیا بخش دیا, حق بخش دیا. یوحنا کی انجیل پہلا باب آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کیا ہے.
सो कलाम मुक़द्दस में अगर आप मसीह की पहचान चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द से अंधापन जो है ये ख़त्म हो जाए, तभी आप उसके फर्जंद बन सकते हैं। अगर ऐसा है ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ रहेंगे तो इसको तो एक दिन छोड़ के चले जाना है, और मसीह के पास आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। बहुत दुनिया के काम हैं जिनको करने के लिए हम 3 घंटे 2 घंटे लगा देते हैं, मगर खुदा के आगे झुकने के लिए हमारे पास 10 मिनट भी हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमारी दुआ इतनी होती है कि 10 मिनट भी हमें ऐसा लगता है पहाड़ जितनी हो गई है, बहुत कर लिया आज के लिए। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पास इतनों ने, तो कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की इंजील उसके 8वें बाब में वापस आते हैं। यीशु ने 23 आयत में लिखा है कि उसके जब वो रूबरू खड़ा हो गया तो उसने क्या कर दिया, उसकी आँखों के ऊपर हाथ रखे, उसके सर पर हाथ रखे और उसकी आँखों को छुआ और उसमें थूका। और मैंने आपको बताया कि उसने इसलिए थूका, वो बगैर थूके भी ये मौजज़ा कर सकता था, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो नामुमकिनात की कुदरत रखता है। बेटा खुद खुदा है और उसके लिए कुछ कलमे के लिए कुछ करना नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि दुनिया का सब कुछ कलमे के वसीला से जो है वो बनाया गया और पैदा कर दिया गया है, मगर यीशु ने ऐसा होने दिया। अब जब यीशु ने उस पर हाथ रखे और उससे पूछा तो देखता है, तो कलाम मुक़द्दस में 24 आयत में अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ तो आप देख लीजिए। उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ, मैं आदमियों को कैसा देखता हूँ, दरख्तों की मानित। मुझे आदमी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त हैं। तो इसका मतलब है कि अभी वो वासिया तौर पर दिख नहीं रहा, बल्कि उसको क्या दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है। 24 आयत में लिखा है उसने नज़र उठाकर कहा मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। तो इसका मतलब है उसको आदमी नहीं दिख रहे, उसको क्या दिख रहे हैं, दरख्त दिख रहे हैं। इसी तरह जो लोग कलाम से वाकिफ़ नहीं ना होते वो इसलिए कलाम से चिढ़ते हैं क्योंकि उनको सब कुछ दरख्त नज़र आता है, धुंधलापन है। अभी जितनी देर तक पौलुस की आंखें अंधी थी रूहानी तौर पर, वो नहीं जानता था वो सौल था, और उतनी देर तक वो खुदा के लोगों को मारता कूटता और उनको हवालात में बंद कर देता था और उनको घरों से निकाल कर उनको बेहुरमत कर देता था। और ये इसमें वो अपने लिए एक बड़ा फ़ख्र समझता था क्योंकि उसकी अक्ल को इस जहान के खुदा ने क्या कर रखा था, अंधा कर रखा था। मगर जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो तब उसने क्या कर दिया, तब वो रास्ते में ही था तो एक नूर चमका, उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का क्या थी जी, नूर थी। वही नूर उसके आगे चमका और उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा तेज़ थी। तब उसकी आंखें जो है वो झुझलाने लगी और वो दुरुस्त तरीके से देख ना सका, मगर उसको आवाज़ सुनाई दी कि ऐ सौल तो मुझे क्यों सताता है। उसने कहा तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो एक घर में जाकर ठहर गया और वहाँ पर 3 दिन तक मुतवातर और मदहोश पड़ा रहा। तब हनन्याह आया जिसको खुदा ने भेजा और उसने आकर उस पर हाथ रख कर क्या की, दुआ की और उसको छुआ और उसकी आंखों से छिलके गिर गए और पहले उसको धुंधला सा नजर आता था, फिर उसको साफ दिखाई देने लगा। तो यही हालत जो है ये उन लोगों की है जो अभी तक खुदा को नहीं जानते और उनको धुंधला सा दिखाई देता है। उनको आसमान की बादशाही की समझ नहीं है, उनको आलम बाला की समझ नहीं है, उनको फर्जंद बनने की होश नहीं है। इब्लीस ने उनकी अक्लों को अंधा कर रखा है। वो दुनिया के मामलात में इस कदर खो गए, बिजी हो गए हैं कि खुदा कौन है, उसकी कुदरत क्या है, बेटा कौन है, इस तारुफ से उनको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि क्या है। और रस्मी इबादत खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बना सकती आपको या मुझे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले अंधापन ख़त्म हो जाए, फिर हम मसीह के रूबरू खड़े हो जाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिल की आंखें खुल जाएं। और दिल की आंखें जो है ये बातन की आंखें कब खुलती हैं, जब हम फर्जंद बन जाते हैं, जब हम बेटे बन जाते हैं। बेटों को पता होता है माँ बाप हमारे लिए कितनी जायदाद छोड़ के गए हैं, इनके पास कब पैसे होते हैं कब नहीं होते, सारी सिचुएशन से वो वाकिफ़ होते हैं। इसी तरह से जो फर्जंद होते हैं उनके पास एक वाज़िया साफ और शिफाफ रोशन मुस्तकबिल है जो आसमान के ऊपर है, यानी आलम बाला पर। ये बदन जो इस आलम के लिए बनाया गया, मैं आपको चलते चलते ये बात बताती चलूँ, ज़रूरी जान लिया मैंने दरमियान में इसको डिस्कस करना। ये इस बदन के ये बदन जो है इस आलम के लिए बनाया गया। अभी मैंने एलिमेंट्स का जिक्र किया,
सो जब हम इस दुनिया के नासर से बने गए हैं तो दुख दर्द तो इस बदन पे ही रह जाएंगे, मगर जब धुंधला नज़र आता है तब हमें इस दुनिया में धुंधला नज़र आता है। पौलुस कहता है कुरिन्थस के हाथ में, अभी तुम्हें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त क्या करोगे, रूबरू देखोगे, आमने सामने देखोगे। आमने सामने देखने के लिए उसकी पहचान होना ज़रूरी है, और उसकी पहचान ये है कि हम उसके कदमों में आ जाएं, और उसके कदमों में आने के लिए ज़िंदगी के कलमे को जानना ज़रूरी है। और ज़िंदगी का कलमा यीशु मसीह है, जो खुदा का इकलौता बेटा है और इस आलम में माँ के जोहर यानी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है, और उसको जाने बगैर कोई बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। अगर हमारे दिल में कोई वसवसे हैं, हम अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी, तो नेकियां कभी काम नहीं आएंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसको हम इब्राहिम को रास्तबाजों जो है वो ईमानदारों का बाप कहते हैं। ईमानदारों का बाप वो इसलिए नहीं है कि वो शरीयत के 10 अहकाम पर अमल करता था, हरगिज़ नहीं। वो इसलिए है कि वो अपने अमाल पर नहीं बल्कि अपने खुदा पर क्या रखता था, भरोसा रखता था, अपने खुदा पर भरोसा रखता था। शरीयत लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, इस पर फिर किसी दिन हम बहस करेंगे। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पर उसको सब कुछ जो है ये धुंधला नज़र आ रहा है, और आज की दुनिया जो है ये धुंधलेपन का शिकार है जी। उसको दरख्त नज़र आते हैं, उनको कलाम का कोई लिहाज नहीं है, कलाम की कोई कदर नहीं है, कलाम की कोई समझ नहीं है। मगर जब कलाम मुकद्दस मिलता है कि यीशु ने उसका दोबारा हाथ रखे, दोबारा हाथ रखने से उसको सब कुछ क्या हो गया, साफ नज़र आने लगा। तो जब तक हम यीशु के पास नहीं आते और उसको छू नहीं लेते, उसको जान नहीं लेते, हम धुंधलेपन का शिकार हैं। और धुंधलेपन को ख़त्म करने के लिए यीशु को दोबारा मौका दे के आपकी ज़िंदगी में काम करें। सिर्फ ये ना जान लें कि हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हम मसीह में आ गए हैं। बपतिस्मा के बाद मसीह में कायम रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जल्दी से देखिएगा, रोमियो का खत है और उसका 6वां बाब देखते हैं। रोमियो का हाथ बोलते हुए समझ आ रही है कलाम की? रोमियो का खत है जी, और उसका 6वां बाब और इसकी 5वीं आयत से आप सबके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाक़त से उसके साथ पवस्ता हो गए, जो बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह के साथ मर जाते हैं, तो बेशक उसके साथ जी उठने की मुशाक़त से भी उसके साथ पवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन जो है ये बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करता है कि मसीह के वसीला से हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ क्या हो जाती है, मसलूब हो जाती है, दफन हो जाती है, और गुनाह का जो बदन है ना, गुनाह का बदन, ये बदन जो है ये इसको गुनाह का बदन कहा गया है। लिखा है कि गुनाह का बदन जो है ये बेकार हो जाए। अब गुनाह का बदन बेकार कैसे हो जाता है? रूह, जान और बदन ये मिलकर एक इंसान जो है वो जीती जान होती है। जिस्म, बदन को और रूह को आपस में मिलाने के लिए खुदा ने इसके दरमियान में जान रख दी है। जान का एक सिरा रूह के साथ है और जान का दूसरा सिरा जो है वो दम के साथ है, जिंदगी के साथ है। तो जब एक सिरा टूट जाता है तो दूसरा खुद ब खुद टूट जाता है, इंसान दुनिया से चला जाता है। तो जान है जिसके मुतल्लिक कलाम मुकद्दस में लिखा है, पुराने अहदनामा में खुदा ने अपनी कौम इसराइल से कहा कि तू गोश्त के साथ खून को ना खाना, क्योंकि खून में क्या है, जान है। खून में क्या है जी, जान है। जब खून में जान है तो इंसान जो है ये रूह, जान और बदन का मरकब है। तो रूह, जान और बदन रखते हुए जान हमें जोड़ती है, ठीक है। और यीशु मसीह ने इसी जान को ज़िंदगी देने के लिए, इसी जान को जोड़ने के लिए अपने इकलौते बेटे को सलीब पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके खून बहाने से, उसके मार खाने से, उसके दुख सहने से, उसके वसीला से और उसके पाक लहू के वसीला से हम नई इंसानियत को अपना लें, और पुरानी इंसानियत उसको कबूल करने के वसीला से, बपतिस्मा के वसीला से क्या हो जाए, मसलूब हो जाए, ख़त्म हो जाए, और गुनाह का बदन हमेशा के लिए क्या हो जाए, बेकार हो जाए।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस जितने मसीह को कबूल करते हैं वो लोग जो है वो गुनाह कर नहीं सकते, क्योंकि खुदा का तुख़म उनमें क्या होता है, बना रहता है। पहला पतरस का खत है ये, और फिर पहला यूहन्ना का खत भी इसी के मुतालिक बयान देता है। कलाम मुक़द्दस जो है ये हमारी रहनुमाई कर रहा है कि हम किस तरह से मसीह में जो है वो बातनी इंसानियत में ज़ोरावर हो सकते हैं, और हम किस तरह मसीह को पहचान सकते हैं। ये पहचान मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ना समझे कि सिर्फ यीशु दुनिया में आ गया और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी तो फिनिश सब कुछ, अब हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करते रहे, उसने जो करना था कर लिया। आसमान की बादशाही में जाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस इफ्सियों का खत और उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 22 से आपके लिए पढ़ूंगी। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 22 आयत लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। ये यीशु मसीह के बपतिस्मा के वसीला से, उसको कबूल करने के वसीला से हो सकती है। लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शक्तियों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अक्ल की रूहानी हालत में हमें क्या बनना है, नए बनना है। अगर हमारी अक्ल ही पुरानी होगी, अंधी होगी, तो फिर तो हम पुराने काम करेंगे ना। और लिखा है और नई इंसानियत को पहनो। नई इंसानियत को क्या करना है, पहनना है, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में कायम की गई है। अब इस हवाले को सिखाने के लिए यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब में अगर मैं आपको ले जाऊं तो वहाँ निकोदेमस की कहानी तो आप सबको आती है। निकोदेमस को छोटा मामूली बंदा नहीं था। बाइबल मुक़द्दस इसके मुताबिक बताती है, ये 3 बार यीशु का इसका आमना सामना हुआ। पहले रात के वक्त में निकोदेमस यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में यीशु के पास आया है, और ये खुद भी उस्ताद है और शरीयत का मौलम है, फरीसियों में से है। और ये बहुत बड़ा ये जो मजलिस होती थी उसमें मजलिस आज़म का ये रुकन था, और ये वहाँ पर बैठा करता और कवानीन पास किया करता था निकोदेमस जो है। और ये यीशु खुद भी उस्ताद है, और यीशु को आकर कहता है कि मैं जानता हूँ तो खुदा की तरफ से उस्ताद बनकर आया है। मगर नई ज़िंदगी पाने के लिए यीशु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उससे कहा जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो, तो वो कहता है पानी और रूह से पैदा ना हो यानी नए सिरे से पैदा ना हो। तो उसने कहा कि नए सिरे से मैं कैसे पैदा होऊंगा, क्या माँ के पेट में हमें वापस जाना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि उसको नई जो है वो पैदाइश की कोई समझ नहीं थी। नए सिरे से पैदा होना निकोदेमस नहीं जानता था, हालांकि उसने पूरी शरीयत जो है उनको रटाई जाती, वो जानते हैं शरीयत के तो वो आलिम हैं, मगर उनको नई पैदाइश की बिल्कुल समझ नहीं थी। मगर यीशु मसीह उसको नई पैदाइश की समझ देना चाहता है, इसलिए कि नया अहद जो है वो रूह का अहद है। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया, टाइम हो गया मेरा, चले 5 मिनट और दे देते हैं। यीशु मसीह के पास फरिश्ता आया, उसे कहा रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा, तो काम ही रूह कुछ से शुरू हो गया मुकद्दसा मरियम के वसीला से, और वो तुझ पर साया करेगा। नया अहद जो है ये रूह का अहद है। और कलाम मुक़द्दस रोमियो के खत और उसके पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि पास जितने यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। इसलिए हुक्म नहीं है क्योंकि ज़िंदगी की शरीयत ने मसीह यीशु में उन्हें मौत और गुनाह की शरीयत से क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। हवाला मैं इसलिए देख रही हूँ मैं कहीं गलत ना पढ़ जाऊँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारी आज़ादी के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और नए सिरे से हम कैसे पैदा हो सकते हैं? नए सिरे से प्यारे अज़ीज़ों हम पैदा हो सकते हैं यीशु मसीह की पहचान रखने की वजह से। अब कलाम मुक़द्दस में ये शख्स जो है इसने यीशु मसीह को जब इसने क्या कर लिया, इसको साफ साफ नज़र आने लग गया। और जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमें आसमान की बादशाही जो है वो साफ साफ नज़र आनी शुरू हो जाती है। आखिरी हवाला पढ़ूंगी कलाम मुक़द्दस में से, देख लीजिए कुर्सियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से। आसमान की बादशाही की पहचान आपको आज शाम हम सिखा रहे हैं, मसीह में है ये। पस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए जाने का मतलब है उसके बपतिस्मा में शामिल हो गए, और फिर आपका ईमान है कि जब वो आएगा तो हम उसके साथ जी उठेंगे। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है।
عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں کیا ہے جی؟ پوشیدہ ہے۔ تمہاری زندگی مسیح میں خدا کے ساتھ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ کیسے پوشیدہ ہے؟ مسیح میں پوشیدہ ہے، زندگی کے کلمے میں پوشیدہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ اس عالم میں یہ بدن ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ روحوں کے بدن میں، روحوں کے عالم میں چلی جاتی ہے۔ مگر یہ جو عالم ہے یہ روح کا عالم نہیں ہے، یہ عالم ارواح وہ ہے جہاں مسیح موجود ہے۔ جب اسطیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا اور اس کو تو لوگ مار رہے اور وہ لہو لہان نظر آ رہا تھا، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ کس عالم کی بات کرتا ہے؟ وہ عالم بالا کی عالم کی بات کرتا ہے جہاں مسیح کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو عالم ارواح میں مسیح یا خدا ہو نہیں سکتا۔ جب سب عالم ہی اس کے ہیں تو وہ دروازہ ہے، اس نے کہا دروازہ میں ہوں، تو جب وہ دروازہ ہے اس کی مرضی کو عالم ارواح میں رہے یا اس عالم میں رہے یا عالم بالا پر رہے، مگر وہ اپنے عالم میں ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ موجود ہے، جس کو عالم بالا بائبل مقدس کہتی ہے۔ اس عالم میں جانے کے لیے اور اس کی چیزوں کی تلاش میں رہنے کے لیے ہمیں زمین کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، بھائی نے مجھے 40 منٹ کا ٹائم دیا تھا، اس حساب سے میرے پاس 5 منٹ ہیں۔ کبھی کبھی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے ان باتوں کو جان کے، جب ہم پرانا عہدنامہ پڑھتے ہیں تو سب کچھ موجود تھا جی، دنیا میں سب کچھ موجود تھا، لوگ شفائیں بھی پا رہے تھے، معجزات بھی الیشا نے کر دیے، ایلیا نے بھی معجزے کیے ہیں، موسیٰ نے بھی معجزے کیے ہیں، بڑے کام خدا کے ہوتے رہے۔ زمین کی ساری برکتیں جو استثناء کی کتاب اور اس کے 28 باب میں لکھی گئی ہیں انسان پا رہے تھے، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ تو پھر مسیح کو کیا ضرورت پڑی تھی وہ دنیا میں آ جاتا؟ یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور کیسی پائیں؟ کثرت کی پائیں، اتنی سی نہ پائیں، کثرت کی زندگی پالیں۔ تو کثرت کی زندگی، ہم تو مر جائیں گے تو پھر کثرت کی زندگی کہاں رہے گی؟ کثرت کی زندگی تو یہ ہے کہ جو زندگی ہمیشہ قائم رہے۔ ابدی زندگی کا نام جو ہے یہ کثرت کی زندگی ہے، فرزندیت میں شامل ہونے کا نام کثرت کی زندگی ہے، باطن کھل جائے، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، یہ کثرت کی زندگی ہے، نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، یہ کثرت کی زندگی ہے، عالم بالا تک ہماری رسائی ہے، یہ کثرت کی زندگی ہے۔ اور یہ سب زندگی کے کلمے مسیح یسوع کو پہچاننے کی صورت میں ہو سکتا تھا۔ یسوع نہ صرف اس اندھے کو شفا دینا چاہتا تھا بلکہ چاہتا تھا یہ نئی زندگی حاصل کر لے، اس لیے اس نے اس کو دھندلا نہ چھوڑا، اس کی بیماری کو ادھورا نہ رہنے دیا، بلکہ اس پر دوبارہ ہاتھ رکھے اور اس کو چھوا اور وہ صاف صاف دیکھنے لگا۔ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آدمی اس لیے روتے چلاتے آنسوؤں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے دعا اور شفائی کا روزے میں ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رسائی عالم بالا تک ہو جائے اور وہ مسیح کو جان لے، اس کی پہچان رکھ لے۔ جو مسیح کو جانتا اور پہچانتا نہیں وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ ابراہیم کے خط اس کے 13واں باب میں لکھا ہے، اس کی 3 آیت میں، کہ میں تمہیں دستبردار نہ چھوڑوں گا، میں ہرگز تم سے دستبردار نہ ہوں گا، بلکہ ہمیشہ تمہارے، جو اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور جب ہم اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اب خیرت کی بات یہ ہے کہ یسوع نے اس کو پھر اس گاؤں میں نہ آنے کا کہہ کر اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یسوع نے اس کو اس کا ہاتھ رکھ اس کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور زندگی وہی ہے جو گھر سے جس کا آغاز ہو جائے۔ اگر لوگ منادیاں کرتے رہے، کلام سناتے رہے، کلام مقدس میں لکھا ہے تو نجات پا تو تیرا کیا کرے گا؟ گھرانہ نجات پائے گا۔ تو گھرانے کے پاس واپس جانا بہت ضروری ہے، گھرانے کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اور آج بھائی تو اس پہ اتنے خوبصورت کلام سناتے ہیں، آج گھرانے ہی تو بکھر رہے ہیں، خون ہم کہتے ہیں سفید ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، گھروں میں جھگڑے نہیں ہیں، ہر کوئی فسادی ذہن لے کے بیٹھا ہے، اس لیے کہ اطمینان زندگی میں نہیں ہے۔ اطمینان اس وقت زندگی میں آ جائے گا جب اطمینان کا چشمے کو ہم پہچان لیں گے جو یسوع مسیح ہے،
आप सबको खुदावंद बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को बंद करें। सब अपने अपने लिए और अपने खानदान घरानों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा का फजल हमारी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहे। दुआ में आप सब मेरे साथ रहिएगा। हर रूह जान बदन अपने लिए दुआ करें ताकि अंधापन यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए, जिसकी तूने हमें पहचान दी है, जिसकी तूने हमें समझ दी है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने कोड़े खाए, जिसने मार खाई, जिस पर थूका गया, जिसको लहूलुहान किया गया, जो बलिदान हुआ, जिसने अपने बदन का कफ़ारा दे दिया ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना दे। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपनी पहचान हमें देने के लिए आ गया और तूने खुदा अपनी फर्जंदियत में हमें शामिल कर लिया। हम तेरे बेटे बेटियां होते हुए आज शाम है खुदा अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को तेरे आगे रख देते हैं और ऐ खुदा हर एक किले को जो हमारे तसव्वुरात की दुनिया में है, जो हमारे ख्यालात की दुनिया में है, ऐ खुदा उनको तेरे यीशु नाम से उठा लेते हैं। हर तरह के ख्यालात, हर तरह के तसव्वुरात यीशु के नाम से ये किले हमारी ज़िंदगी से उठा जाए। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत के वसीला से ये उठाए जाए और ऐ खुदावंद तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से ऐसा मुमकिन हो कि हमारे घरानों में तेरा इत्मीनान बैठ जाए। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की नाचाकियां, हर तरह की बुरी सोचें, बुरी रफ्शें ऐ खुदावंद यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। सलामती तेरे हजूर से कायम हो जाए। ऐ खुदावंद इत्मीनान और तसल्ली का रूह हर एक की ज़िंदगी में ठहर जाए। आज की कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत देना ताकि तेरा इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे और हमें सब कुछ साफ साफ नजर आए। यीशु नाम में ये बरकत मांगते हैं, आमीन। मैं अभी यही बोलने लगा था और खुदा का शुक्र है कि आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। और हमारी दुआ है कि खुदा अपनी खादमा को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, अपनी दुआई के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, इसकार जाहो बरेगी। तो अब मौका है हीलिंग का, शिफा का, और बहुत सारे बहन भाई आते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। और जो कलाम का हवाला पढ़ा गया है और यहाँ पर एक अंधे का जिक्र किया गया है और उस अंधे को लाने वाले कुछ लोग हैं। जब वो खुदावंद के पास आया और उसको ऐसा लगता है कि यीशु क्योंकि वो देखता नहीं था और उसे इल्म नहीं था और लाए कुछ लोग उसको लेकर आए क्योंकि वो ज़रूरतमंद था। आप लोग क्यों इस वक्त इबादत में आए हैं? बहुत सारे बहन भाई आप क्या हैं? ज़रूरतमंद हैं। वो अंधा यीशु के पास क्यों आया? बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि वो ज़रूरतमंद था। उसकी क्या ज़रूरत थी? आंखों की ज़रूरत थी। आंखों की ज़रूरत थी। तो क्या उसकी ज़रूरत पूरी हो गई? पूरी हो गई। क्यों पूरी हुई? क्योंकि वो यीशु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या डू यू बिलीव दैट कि खुदा आपकी नीड को भी आज पूरा करेगा? जोर से बोले। क्यों? क्योंकि यीशु के पास आए। क्यों? बोल मेरे साथ नहीं बोले, क्योंकि मैं यीशु के पास आई हूँ, क्योंकि मैं यीशु के पास आया हूँ। उसकी नीड क्या थी कि वो उसका अंधापन खत्म हो जाए। अभी आप आए हैं, हर आदमी की अपनी अपनी नीड है। तो क्या खुदा हम सब की नीड को पूरा कर सकते हैं? हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए। खुदा मेरी और आपकी सब नीड्स को जानता है। जो शायद आप एक साल के बाद आपके ऊपर मुसीबत आने वाली, उससे भी वो वाकिफ है। हम ये कैसे खुदा की पूजा करते हैं? तो लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के ईमान को डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमने क्या करनी है? शिफा के लिए दुआ करनी है
تو وہ حاجت مند تھا، وہ ضرورت مند تھا۔ آج بھی دنیا جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، وہ اپنے اپنے ایمان کے مطابق اپنے اپنے پیروں فقیروں مزاروں درگاہوں پر جاتے ہیں، اور جن کا ایمان یسوع پر ہے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ اور یسوع خود کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کہاں لکھا بھائی؟ قدس یونا انجیل 6:37 Whoever will come to me، کیا لکھا ہے؟ Whoever will come to me I will not rebuke him، میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ اس وقت کیا خداوند کو پتا نہیں تھا کہ he is blind؟ بولیے جواب ہے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سناتا، میں کہتا بولے جب وہ یسوع کے پاس لایا گیا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے یہ اندھا ہے تو اس کو چھو، کیا یسوع کو بتانے کی ضرورت تھی لوگوں کو؟ کیا یسوع خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اندھا ہے؟ بولیے زور سے۔ تو پھر کیوں ضرورت پڑی؟ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کریں، آئے خداوند خدا مجھے تیری ضرورت ہے۔ زور سے بولے یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ سب بولیں یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اندھا کا خدا اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یسوع ایک عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی، she was healed from his bleeding، وہ شفا پا گئی، اور یسوع پوچھتا ہے کہ who has touched me؟ تو شاگرد کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے۔ اتنی بڑی بھیڑ گری پھرتی ہے تو کہتا کس نے چھوا؟ تو نے کہتے نہیں، چھونے میں، آپ لوگ دھیان سے کلام سنے بیٹے، چھونے میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کسی نے مجھے ایمان نہیں، ایسی بات نہیں، آتی بات ہے نا، کھا نہ جاؤ، کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے۔ Then and there she was healed from her bleeding. She was healed with only one touch. She was healed with only one touch. زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ وہ تو اندھا تھا، اس کی ضرورت آنکھیں تھی۔ شاید آپ کنسیو نہیں کر پا رہی، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، گائنی پرابلم ہے، بیبی، آپ کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کچھ بہنوں کی کہ آپ کی شادی کو بہت سارے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے بھی ہوں گے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے، یا یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کا جاب نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی الگ الگ مسئلہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ایمان کو ڈیولپ کر رہا ہوں، آپ کے ایمان کو اس مقام پر لا رہا ہوں کہ وہ ہمارا ایمان اس مقام پہ آ جائے جس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہو جائے؟ شفا مل جائے۔ شفا کا تعلق کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ یسوع اپنے شہر آیا اور یسوع نے کوئی معجزے نہیں کیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ روحانی شفا کا تعلق جسمانی شفا کا تعلق ہے، اس کے ساتھ لکھا ہے ایمان کے ساتھ۔ خدا کے پاس آنے والوں کو کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ اگر خداوند اس اندھے کی آنکھوں کو شفا دے سکتا ہے تو آج خداوند خدا اگر کہ اس کو علم تھا کہ he is blind، لوگوں جو
لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو چھو. خداوند جانتا ہے, پھر بھی خداوند خدا ہماری زبان سے چاہتا ہے کہ ہم بولیں کہ خدا میری یہ نیڈ ہے. سب سن رہے ہیں مجھے؟ آپ سب یہیں پر ہیں؟ اگر آپ کے خیالات بکھر گئے ہیں تو ان کو جمع کر دیں. آپ موضوعات کا وقت ہے, ہم اس ایریا میں داخل ہو گیا, موضوعات ہونے والے ہیں. ہلیلویا. یہ آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کے گھریلو مسئلے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, تو خداوند خدا ان کو حل کرنے والا ہے. آپ کے کاغذات جو ہیں ایمبیسی میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے جواب نہیں آ رہا, تو آپ کو ایمبیسی سے جواب آنے والا ہے. شاید آپ لوگوں کی ضرورت نہ ہو, کوئی سن رہا ہو مجھے, تو ان کی نیڈ ہو. آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, تو خداوند خدا کیا کرنے والا بھائی آپ کا؟ ہلیلویا. کیا خدا اس قابل ہے؟ ہلیلویا. وہ تمام جہان, تمام بشر کا وہ خالق اور مالک ہے. آج آپ کی جو نیڈ ہے وہ اس کو پورا کرے گا. آئیے ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے لیے دعا کریں. This is your time. آپ اپنی بیماری کا نام لے کے دعا کریں کہ خدا میرا یہ مسئلہ ہے, میرے اسپیسفک, خدا چاہتا ہے کہ اسپیسفک نام لے اپنی بیماری کا, اپنے مسئلے کا, کاروبار کا, اپنے بانجھ پن کا, بلڈ پریشر کا, ڈائبٹیز کا, بلڈ بارن ڈیزیزز کا, جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں آپ ان کا نام لیں. آپ اسپرچول گرو کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ موقع ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں. This is your time. Hallelujah. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آواز میرے کانوں میں آئے. آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں. آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. اور آگے, اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھیں. بندروں کو توڑیں. زندہ کلیسیا, زندہ ایماندار وہ کلیسیا لوگ ہیں جہاں پر روح سے بھرے ہوئے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. پلیز ریز یور ہینڈ. اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں, اپنے ہاتھوں کو لہرائیں اور مانگیں. ہالےلویا. خدا کا 11 مسا ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. جب خدا کا خادم کہتا کہ آپ اٹھائیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. آپ لوگ گلے کے ساتھ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور لہرائیں ہوا میں تاکہ خدا محسوس کرے. ہالےلویا. تو ضرورت ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. کیا ہو کرے گی. خدا وہ ذات کا نام ہے. خدا کی نیڈ کو پورا کرنا ہے, خدا کے مسئلے کو حل کرنا ہے. Do you believe that? کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ خدا کے مسئلوں کو حل کرنا ہے, آپ کی جانی پرابلم کو ختم کرنا ہے, آپ کے یوٹرس میں فائبرائڈز کو ختم کرنا ہے, سرس کو ختم کرنا ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. کیا ہو کرے گی. بیکے کو ختم کرنا ہے, گھریلو مسئلوں کو ختم کرنا ہے, آپ کے بہتر کاروبار کا بندوبست کرنا ہے, آپ کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے خدا نے ایک نیا منصوبہ کے لیے بنایا ہے. جو میں بول رہا ہوں نبوت سے میں بول رہا ہوں, اور جو آپ کے لیے نبوت ہو رہی ہے اس پر آپ سٹینڈ کر رہی ہے. کلام میرے لیے ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. پریز گاڈ. اس وقت خدا منصور آپ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ہالےلویا. پریز گاڈ. کیا ہو کرے گی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہالےلویا. پریز ہی. ہالےلویا. 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 پریز ہی. ہمارے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی ہیں فیس بک پر, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنی عزیز بہن سسٹر یقین ارشد کے لیے جو بیمار ہے, اس کے والد کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہو گئی, اس کا مدد خاندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. بہن سمنتا کے لیے, دبئی
लिए हम दुआ करते हैं। अगर कोई ज़हनी मरीज है और प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। तमाम बीमारों के लिए हम दुआ करते हैं जो कि हमारे पास फेसबुक पे ऑनलाइन लोगों ने भेजी है। इस ईमान के साथ आए खुदा मैं हाजिर जमात के लिए दुआ करता हूँ और इन बहन भाइयों के लिए जिनकी दुआ उन्होंने रिक्वेस्ट अपनी फेसबुक पे भेजी है। मैं तेरा खादम तेरे मसा को मानता हूँ, तेरा मसा आए खुदा सारे बंदरों को तोड़े और तमाम बीमार शिफा पाए। वो साथ के नाम से हो देखे लल्ले भागे और बहरे सुने और हालेलुया ब्लड बॉन्ड जिंदत should go in mighty name of Jesus. Appetite should go in mighty name of Jesus. हालेलुया दिल की बीमारियां हार्ट प्रॉब्लम should go in mighty name of Jesus. हालेलुया जो घर में देख रहे बैठे हुए उनके जो मसले हैं वो हल हो जाए। हालेलुया और जो जोड़े भांज हैं खुदा ने उनसे कलाम कर रहे कि आप मेरी बेटी को मुकर्रम पर तनसीब करेंगी और इसी साल आप बस खुदा ने दा करेगा और आपको खुदावंद फजल नजीमा औलाद जैसी नेमत अता करेगा। खुदावंद कह रहा मैंने तेरा कर्जे का बंदोबस्त किया और जल्द उतरेगा। हालेलुया प्रेज गॉड जय हो परेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र। तूने हमको छुआ है और शिफा दी है। ये सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप मेरी तरफ देखें, आप सब खुश हैं? क्या आपका यकीन है खुदा ने आपको बरकत दी है? आपकी तालियां बताएंगे। पहले बहने मसा के लिए आ जाएंगी और हम अपनी शुक्रगुजारियाँ अपने हदियाजात खुदा की खिदमत में पेश कर सकते हैं। उसके बाद भाई आगे आएंगे। हालेलुया। आप जल्दी जल्दी आ जाए और इसके बाद चाय का बंदोबस्त है। डॉक्टर सकिया जॉन ने हमारे चाय का बंदोबस्त किया है। चाय जरूर पी के जाएँ। हालेलुया। और हमारी दुआ घराने को आज इस खिदमत के वसीला से बरकत अता करेगा।
شہر ہولی فیملی میں ایز اے پرنسپل تعینات ہوئی ہیں. اگر ہماری بیٹیاں اس میں کوئی ٹریننگ کرنا چاہتی ہیں نرسنگ کی تو سیامہ یا بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں, رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آئیے آپ بیٹھ جائیں, جماعت بیٹھ جائے. آئیے آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اے خداوند خدا کے پاک بندے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج شام کے لیے, اس رفاقت اور شراکت کے لیے. اور اے خدا, ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ تو نے آج کے روحانی روٹی کلام کے وسیلہ سے, جو تو نے اپنی خاتمہ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کے بیج کو بویا, اپنی بیٹی کے وسیلہ سے سب نے برکت پائی. تیرا شکر. اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بیٹے بیٹیاں کیرسمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے آئے خداوند خدا آگے ہیں, اور آئے خدا لوگ بچے پیدا ہوں روحانی طور پر, اور تیرا یسوع نام جلال پائے. تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں تیرے آ جانے کے لیے, تیری حضوری کے لیے, تیری موجودگی کے لیے. تیرا شکر ہو. جبکہ آنے والے دنوں میں 6 تاریخ سے آئزون لینڈ ڈیز شروع ہو رہے ہیں. 6 مارچ سے پہلا روزہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو فضل عطا فرما, کہ ہم ان دنوں میں پرہیزگاری کے ایام میں جب گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کریں. اگلے فرائیڈے کی عبادت کے لیے دعا کرتے ہیں, جبکہ ہماری عبادت کا وقت 7 بجے ہے, تو ہمیں فضل عطا کر کہ ہم ٹھیک 7 بجے عبادت میں آ سکیں, اور آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے. یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہم سب کھڑے ہو جائیں دعا ربانی میں. خدا کی سکائی دعا میں شریک ہوں. آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تک رہی ہے, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت ہمارے ساتھ, تمام قصوں کے ساتھ, ہمارے خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا رہے, آمین.